Today I am going to discuss about the first biology chapter of class 10th, and the chapter is life process. Okay, let us start to know about the life process. At first we discuss what are the life process. Okay, all the process that occur in a living body to keep alive. It means all the process that is essential for the maintenance of life is known as life process. What are the major life process? The major life process are nutrition, respiration, transportation and excretion. These are the four major life process that need to be performed by a living body to keep alive on the earth. Okay, now proceed. Are you ready, everyone? Okay, let us proceed. The first topic is nutrition. At first we discuss about the nutrition, then we discuss about the respiration, then we discuss about the transportation, and last when you discuss about the excretion, the chapter will be finished. Okay, are you ready? Okay, now we are studying what the nutrition is. You have already learned something about the nutrition in class 7th. Nutrition in plant and animal. Okay, you were aware what the nutrition is. Let us think about that. A nutrition is sum of all the process starting from taking in of the food and utilization by the body. It means what the nutrition is? Nutrition is the process of taking in of the food and its utilization. Write it down in your copy. फटाफट अपने कॉपी में लिख देना. Nutrition is the process of taking in of the food and its utilization. Nutrition is the process of taking in of the food and its utilization by the body for the various functions is called nutrition. And there are two types of nutrition, either autotrophic nutrition or heterotrophic nutrition. The autotrophic nutrition are the mode of nutrition in which organisms take in self-prepared food and utilize them to obtain the various products essential for the survival. Okay, and what the heterotrophic nutrition is? Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which plant derive the nutrients from the food prepared by autotrophs or other organisms. Food prepared by autotrophs or other organisms is called heterotrophic nutrition. Confirm हो गया? Autotrophic क्या है? Mode of nutrition in which organisms depend upon the self prepared food, but heterotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organisms depend upon the other organisms for the food. Clear? Let us move. Autotrophic nutrition mostly occur in the green plant and some bacteria like blue-green algae that possess the chlorophyll. Okay, we will discuss how plant synthesize the food by the process of photosynthesis. We will discuss just after some time. At first we discuss about what are the different steps of nutrition, and before that we know what are the different type of heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is a single type, but heterotrophic nutrition of many types like saprophytic nutrition. A saprophytic nutrition is the mode of nutrition in which organisms digest, break the complex molecules of dead and decaying plants into simple form and absorb the nutrients from them. Saprophytic nutrition क्या है? A mode of nutrition in which organisms depend upon food for dead and decaying plants and animals. How they absorb the food? Then saprophytic organisms release the digestive enzymes on the dead and decaying waste of plants and animal
and convert them into the simple soluble form. ये सब आप क्लास 7 में पढ़े, simple soluble form and then absorb the nutrients from the food. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कंफर्म हो गया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? तो जितने भी डिकम्पोजर होते हैं वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism obtain the food from the host plant। ठीक है, खसकूटा याद होगा, अमरवेल आम के पेड़ पे रहता है और जो आम का पेड़ खाना बनाता है उसी में से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड and the organism from which they obtain the food is called host। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, खसकूटा। नेक्स्ट सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, symbiotic nutrition, a mode of nutrition in which two or more organisms live together। Two or more organisms live together and prepare the food. For example, algae and fungi. Algae possess the chlorophyll but do not have true roots to absorb the water and minerals, but fungi do not have chlorophyll and have true roots, leaves, and therefore fungi absorb water and mineral, okay, and the algae trap the sunlight and prepare the food by the photosynthesis। confirm हो गया। and both algae and fungi live in the relationship called symbiotic relationship। there is another example, as you know, rhizobium bacteria live in the root of plants, root noodles in the symbiotic relationship। confirm, समझ में आ रहा? क्लास 7 में आपने पढ़ा था, बस मैं रिकैप करा देता हूँ इसको। and the last is holozoic nutrition, this is the mode of nutrition in which organisms intake eat solid food। we all are animals and human being are the part of holozoic nutrition in which organisms feed on solid food material। याद रहेगा, solid food material पे हम लोग डिपेंड करते हैं, तो हम लोग का न्यूट्रिशन कौन सा हो गया, holozoic nutrition। ठीक है, और सब बचे कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सब आप लोग को पता है। तो हमने कंफर्म किया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। कंफर्म हो गया, बढ़े आगे। ठीक है, सबको लिखना है ना कॉपी में, यस। चलो रेडी हो जाइए। अब हम लोग देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है उसको डिटेल्ड हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है तो शुरुआत कहाँ से होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड इंजेशन। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इंजेशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द फूड इनसाइड द माउथ। taking in of the food is called ingestion। confirm है? later we will discuss in animal nutrition, today just we know the what are the different steps। and the second step is digestion। digestion is the steps of nutrition in which organism convert the complex molecules into the simple soluble form so that it can be easily absorbed and utilized। कंफर्म हो गया, टेकिंग इन ऑफ द फूड, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फॉर्म, एंड नाउ द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द मिक्सिंग ऑफ soluble form of the food into the body fluid like blood। ब्लड में जो मिक्स होता है उस मिक्सिंग को ही हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एंड आफ्टर द मिक्सिंग देयर इज अ नीड टू ट्रांसपोर्ट दिस फूड मटेरियल टू द डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, and the parts of the body
having the different kind of cells, and that cell utilize the food material for the generation of energy and for the growth and repair of the cells, and that is called assimilation. Then what the assimilation is? Assimilation is transportation and utilization of food material for release of energy and for the growth of and functioning of the body. Okay, and last but not the least is the process of nutrition, that is called digestion. In digestion, it is just like the excretion, removal of the undigested food outside the body that is not useful. कंफर्म हो गया स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। बढ़े आगे, आज का जो मेन टॉपिक होगा पहला में, वो आपको क्लास 10th में सबसे ज़्यादा समझना है। सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पता है कि जो प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। उसमें क्या क्या होता है मेन मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना इन चीज़ों को। सबसे पहले हम प्लांट को देखें तो प्लांट्स के पास ढेर सारा लीव्स होता है। वो लीव्स ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल किसके अंदर होता है याद होगा? क्लोरोफिल प्लास्टिड्स के अंदर होता है। अब वो प्लास्टिड्स कौन सा जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड्स का एक टाइप है। जो प्लास्टिड्स एक ऑर्गेनेल से, पता है आपको, क्लास 9th में आपने सेल चैप्टर में पढ़ेगा। प्लास्टिड्स क्या है? एक ऑर्गेनेल से जो सिर्फ किस में रहता है? प्लांट सेल में रहता है। कन्फर्म है? अब प्लांट सेल में जो प्लास्टिड्स होता है, जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता था, याद होगा। ओके, तो वो प्लास्टिड्स में एक टाइप होता है प्लास्टिड्स का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर याद? ठीक। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक टाइप का प्लास्टिड्स होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो जनरली 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। क्लोरोफिल जो होता है वो 2 सेक्शन में बटा होता है। यानी आप अगर देखोगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर का व्यू, ठीक है, डायग्राम में आपको दिखा दूंगा, स्लाइड में दिखेगा आपको, डायग्राम देख लीजिएगा। डायग्राम में जब आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुसते हैं तो 2 तरह का नजर आएगा। एक प्लेट टाइप का स्टैक्स रहेगा वन ओवर द अनदर, और पूरा फिल्डअप रहता है क्या चीज़? लिक्विड। जो लिक्विड फिल्डअप रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। जो लिक्विड फिल्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। और जो उसके अंदर स्टैक्स होता है, प्लेट्स वन ओवर द अनदर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। ये दोनों जो है वो कहाँ रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इट मीन्स व्हाट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस? द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट, okay, there are chlorophyll, okay, and in chlorophyll there are 2 structure, that is grana or stroma. Grana is sticks, bag like structure, one above the another, and there is a fluid medium called stroma. कंफर्म हो गया? डायग्राम देख लेना। आगे बढ़े, चलो बात करते हैं। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड बाय द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी होता कैसे, क्या क्या चाहिए इसके लिए? व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड? एट फर्स्ट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज सनलाइट। ओके, क्या? सनलाइट। याद है? तो होता क्या है कि डे टाइम में, दिन के समय जब सनलाइट रहता है, उस समय ये जो मैंने बताया ग्रेना, वो लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ग्रेना क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है सोलर एनर्जी को। क्या कर लेता है? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और उसको वो ATP और NADPH, ATP इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, NADPH ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को अलग अलग मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर करके रखता है, ठीक है। यानी वो जो फोटोकेमिकल एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? वो जो सनलाइट का सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH. NADPH इज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NADPH इज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है।
इसलिए किसी को जरूरी हो तो दे देगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, दिन के समय होता है कि वो जो क्लोरोफिल है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको केमिकल एनर्जी में बदल के रख लेता है। वो एनर्जी किसके फॉर्म में रहता है, एटीपी और NADPH। वो एनर्जी जो है वो क्या होता है, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है ये वाटर को ब्रेक करने के लिए। क्या करने के लिए, वाटर को ब्रेक करने के लिए। यानी ये सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है वाटर को ब्रेक करने के लिए। और वाटर जब ब्रेक होता है तो H+ आयन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ जो NADPH के रूप में रह गया और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाता है, फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रह गया तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन रिलीज होता है वाटर से। अभी तक हम लोगों को पता था कि सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट किस फॉर्म में देता है, प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन रिलीज करता है। नहीं, प्लांट वाटर को भी स्प्लिट करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। और ऑक्सीजन रिलीज किस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो होता है लिप्स के बेस में होता है, अपर सरफेस में नहीं होता है, लोअर सरफेस पे होता है। स्टोमाटा, स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स, लोअर सरफेस ऑफ द लिप्स। एंड स्टोमाटा इज गार्डेड बाय a cells called guard cell. Stomata is the opening that is closed and opened by guard cell. And there is two function of the stomata. पहला, it help in the exchange of O2 and CO2. It take CO2 and release O2. And दूसरा, second is release of water vapor, excess water vapor released by the plant in the form of water vapor. ठीक है। तो जब वो गैस का एक्सचेंज करना रहता है तो स्टोमाटा खुल जाता है, ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 and CO2 द स्टोमाटा ओपन, बट व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर द गार्ड सेल स्वेल अप एंड क्लोजेस। वाटर वेपर जब निकलता है तो गार्ड सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और फूलने के बाद स्टोमाटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। समझ में आ रही बात, ज़्यादा तेज़ी से तो बोल नहीं रहा हूँ। आप अपनी बुक को देखोगे तो ये सब बात उसमें लिखी हुई पहले भी आप पढ़े हुए। स्टोमाटा समझ में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है, तो प्लांट जो होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल प्रोवाइड करता है। ठीक है। कुछ ट्रेसेस एटमॉस्फेयर में भी रहता है, आपको पता है, सम अमाउंट, बट देयर इज लेस देन 1% जो रहता है वो क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़े, ओके। अब ये समझ में आ गया कि प्लांट क्या करता है डे टाइम में। दिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज क्लोरोफिल that absorb the solar energy and convert them into the chemical energy, and that chemical energy is used to break the water into the H+ ion and oxygen. It means hydrogen and oxygen. समझ में आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है that is carried by the NADPH। P मतलब प्रोटोन कैरियर। ये H किसके लिए आया है, H+ के लिए क्या आया है, P प्रोटोन कैरियर। H+ के लिए क्या आया है, P। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आया है, H। ठीक है। ये किसके फॉर्म में आता है, ये आ जाता है आपको किसके फॉर्म में, प्रोटोन कह सकते हैं आप। और ये किसके फॉर्म में आता है, H के फॉर्म में। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे NADPH, इसमें NAD अ काइंड ऑफ ATP, वो जो हमारे पास निकोटीन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट आयन है। ठीक है। अब ये आयंस के रूप में यानी एनर्जी स्टोर्स रहता है। वो एनर्जी में यहाँ पर P किसका फॉर्म है, प्रोटॉन, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हुआ, H+ आयन इसलिए हुआ क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। और ये इलेक्ट्रॉन जो यूज हो जाता है वो रिड्यूस करने के लिए CO2 × C6H12O6। तो 3 स्टेप हो गया।
फोटोसिंथेसिस में डे टाइम में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और किस में कन्वर्ट करके रख देता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH जो वेरियस फॉर्म में यूज होता है, ADP बना के भी यूज होता है। और रात के टाइम में डार्क रिएक्शन यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन डे टाइम में नहीं होता है, रात के टाइम में होता है। वो जो हमने बताया था फ्लूइड मीडियम जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर दिया जाता है। रिडक्शन आपने पढ़ा होगा पहला चैप्टर जो 10th में था, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, बताइए, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं बता दी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे किसका रिडक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब मिलके क्या बना लेता है, ग्लूकोज। क्या बना लिया भाई, ये बना लिया आपका ग्लूकोज, कंफर्म। बट ये ग्लूकोज जो है डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता प्लांट के द्वारा, प्लांट डायरेक्टली ग्लूकोज को यूज नहीं करता है। प्लांट क्या करता है, जब उसको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा एनर्जी प्लांट को चाहिए नहीं, इसलिए डायरेक्ट वो यूज नहीं करता, उसको वो स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में रखता है, स्टार्च के, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। ग्लूकोज के कंपेरिजन में वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं कुछ और आगे न्यूट्रिशन में। आज था आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कंफर्म हो गया, समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, कमेंट कर लो, लाइक कर लो। थैंक यू, बाय।